ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤੇ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਐਬੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਉਪਕਰਮ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਉਪ ਸੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਹਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਥਮ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੇ ਮਹਤ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ, ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ, ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੇ, ਸੀਤਲਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੈਸੇ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੈਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ तमाम अध्यात्मिक तत्व ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। तो शरीर ਦਾ ਮੂਲ ਚੁੰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। तो ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਜੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ। ਮੂਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੂਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਰਸ ਕਿੱਥੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿੱਥੇ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ परमात्मा ने दिते ने, क्या गुरु भी परमात्मा ने दिता है? सतगुरु दा श्लोक तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, गुरु भी परमात्मा दी देन है, जैसे कि मां बाप परमात्मा दी देन है। तो इस जीवन दे पावन जो है गुरु है, पानी पिता है, धरती मां है। इसका निखेड़ा इस तरीके नाल करना पेगा कि बोलण नाल संबंध जुड़ते ने ते पवन करके असी बोलते हाँ, देही माटी बोले पौन। पौन ही नहीं ते बोलना नहीं, ते जे बोलना ही नहीं ते संबंध ही नहीं। बोल के संबंध जुड़ते ने संसार नाल, बोल के ही संबंध जुड़ते ने निरंकार नाल, परमात्मा नाल। जो जिस व्यक्ति नाल जितनी लंबी चौड़ी बोल चाल रखता है, उस बोल चाल तो अंदाजा लग जाता है इत्थे उतना ही गूढ़ा ते लंबा संबंध है। ते जो जितना ज्यादा जप करी जा रहा है, जो जितना ज्यादा बाणी बोली जा रहा है, जो जितना ज्यादा भजन गायन की जा रहा है, शब्द गायन की जा रहा है, बोली जा रहा है, उसदे बोलण नाल उतना ही परमात्मा नाल गूढ़ा संबंध जुड़ जाता है, गूढ़ा रिश्ता जुड़ जाता है। पर चूंकि बोलना पवन करके है, इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पवन गुरु है, ते बोलन हार परम गुरु एही। परम गुरु एही बोलन वाला है। ते कौन बोलदा है? देही माटी बोले पवन। तत्तां दे चों ए तत्त पवन सिरमौर है। फिर पानी पिता माता धरत महत, मां की रकत पिता बिंद धारा। पिता दा पानी, माता दी मिट्टी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। गेरवी मिट्टी खून, भाव मां दा खून ते मिंज ते पिता दा पानी। और इस तरीके नाल पवन दा सुमेल, इस शरीर दी बनतर। शरीर दे च पवन गुरु, शरीर दे च पानी पिता, और शरीर दे च जो धरती दा हिस्सा है ये मां है। उंज भी आद काल तो साडे देश दे च धरती नू माता ही कहंदे आए ने, और देश नू मातृभूमि कहंदे आए ने। ये मां है, ये धरती मां है। जिथे मनुख दा जन्म होया उत्थों दी धरती मां है। ऐसा क्यों आख्या गया? दरअसल जो मनुख दा ये ढांचा है, अगर इसनू पूर्ण तौर पे देखिए, जो बुढ़ा है कुछ दिन पहले जवान सी, जो जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, जो बच्चा है कुछ दिन पहले मांस दा लोथड़ा सी, जो मांस दा लोथड़ा है कुछ दिन पहले बिंद सी, जो बिंद है कुछ दिन पहले खून सी, जो खून है कुछ दिन पहले खुराक सी, जो खुराक है कुछ दिन पहले मिट्टी सी। मिट्टी मूल है शरीर दा। तो मिट्टी यात्रा ते चली, मिट्टी विचों निकली खुराक, खुराक तो ही खून बनया। अगर कोई खुराक ना खाए खून कित्थों बनेगा? तो मिट्टी विचों निकली खुराक, खुराक तो बनया खून, खून तो बनया बिंद, बिंद तो बनया मांस दा लोथड़ा, ते मांस दे लोथड़े तो ही बनया बच्चा, फिर जवान, फिर बुढ़ा, ते बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तो शरीर दा मूल तत्व
ये धरती है और इस धरती दे च, इस मिट्टी दे च पानी है ताकि इस मिट्टी दे च हरकत होवे ते पानी ते मिट्टी दा संबंध जोड़ के रखे है पवन ने। तो जुड़ा संबंध जोड़े ते गुरु है। शरीर दे च प्राणा ने, श्वासा ने, पवन ने बकायदा संबंध जोड़ के रखे है सारे तत्तां दा। इस वास्ते तत्तां दे चों ये गुरु है। बाहरली दुनिया दे च गुरु परमात्मा नाल संबंध जोड़ के रखदा है, आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़ के रख देंदा है। इस वास्ते ओ शब्द जिहदे बोलदियां आत्मा परमात्मा नाल जुड़ जाए वो गुरु है। शब्द चाहे ओ बोलीए जिहदे नाल संसार दे जोड़ जुड़दे न, या ओ बोलीए जिहदे नाल निरंकार दे जोड़ जुड़दे न, आखिर शब्द दी उत्पत्ति पवन तो ही होवेगी। फर्क सिर्फ इतना है, एक ओ शब्द है जिहदे नाल जगत नाल जुड़ीदा है और जिहदे नाल परमात्मा नाल जुड़ीदा है। जिस शब्द नूं उचारण करके उन्हों कहीदा है गुर शब्द, सिरमौर शब्द, महान शब्द, जिसदा सदका प्रभु नाल संबंध जुड़ गया। तो महाराज कहंदे ने चूंकि बोलना पवन करके है, पवन गुरु है और ये पानी पिता है, ये धरती मां है, इस शरीर दे गुरु विराजमान है, माता विराजमान है, पिता विराजमान है और इस ढंग नाल इस शरीर दी सिरजना हुई, रचना हुई। महाराज कहंदे ने दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। ये दिन ते रात खिडावे ने, दाई है, दाया है। आखिर जो कुछ भी असी करदे हां दिन दे अंदर करदे हां, रात दे अंदर करदे हां ते दिन रात दे च ही ये जगत दे जीव खेडदे ने। रात नूं विश्राम करदे ने, दिन नूं धंधा करदे ने, चोग चुगदे ने, रिजक लभदे ने। गरज के दिन ते रात मनुख नूं अपने विच उलझाई रखदे ने। खिडावे दा कम की है? बच्चे दा मन परचाई रखना, बच्चे नूं उलझाई रखना, बच्चे नूं खेड दे च लीन रखना। तो दिन ते रात दोवें खिडावे ने। दाई लोरी दे के बच्चे नूं सुला देंदी है, दाया खिडावा दिन भर खिडौणियां नाल बच्चे नूं खिडांदा है। तो दिन दाया है, खिडावा है और रात दाई है। ये मिठी लोरी दे के जीवां नूं सुला देंदी है। पशु पंखी मनुख कायनात दा जर्रा जर्रा सो जांदा है और दिन खिडावा है। हर पासे मनुख भजदा है, दौड़दा है, जीव भजदे ने, दौड़दे ने और ये सारा दिन अपना यही हरकत दे मनुख रहिंदा है। कदी इस पासे जा, कदी उस पासे जा, कदी कुछ कर, कदी कुछ कर। ये सारी हरकत चूंकि दिन दे अंदर है तो साहिब कहंदे ने दिन खिडावा है ते विश्राम रात नूं है। इस वास्ते रात दाई है। इते निंद्रा दी मिठी लोरी ही जो ऐसी देंदी है कि सारी कायनात नींद दी आगोश दे चली जाती है। इस वास्ते साहिब कहने दिन ते रात दाई ते दाया ने खेले सगल जगत। इहदे च ही तमाम जगत दे जीव खेड रहे ने, विचर रहे ने। चंगियां आईयां बुरियां आईयां वाचे धर्म हदूर। हुण जीवां दियां जिहड़ियां चंगियाईयां ने ते बुराइयां ने, ये धर्म दी हजूरी दे वाचियां जांदियां। ऐसा नहीं कि जो बुरा कर छड़िया है कर छड़िया है, करके छड़िया नहीं, करके कोल है। चंगियाई कीती है करके छड्डी नहीं, वो कोल है, ओदा सूक्ष्म हिस्सा कोल है, ओदे संस्कार कोल ने। ते ये धर्म दे द्वार दे पढ़े जाणगे। धर्म परमात्मा अकाल पुरख दे द्वार ते पढ़े जाणगे। भाव उस अकाल पुरख दा ऐसा एक नियम है कि मनुख जो कुछ करदा है उन्होंने वाचिया जांदा है ते उहदे मुताबिक ही जीवन रेखा अगे दी तोरी जांदी है। तो साहिब कहंदे ने चंगियां आईयां बुरियां आईयां वाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण ऐसे कर्म जिन्हां दे ते बुराई दी मोहर लगी हुई है वो मनुख दूर चला गया। ऐसे कर्म जिन्हां दे ते नेकी दी मोहर लगी हुई है परमात्मा दे नेड़े चला गया। मनुख नूं वेख के असी अंदाजा ला सकते हैं अगर इहदे आमाल शुभ ने, इहदे कर्म शुभ ने
तो ये बंदा परमात्मा दे निकटवर्ती है, ये बंदा अकाल पुरख दे नेड़े है। सानू कई दफा उस नाल याराना गणना पैंदा है जो किसी बादशाह दे नेड़े है, हुक्मरान दे नेड़े है, ते असी उसनू मान सन्मान देंदे हां भी ये ते राजे दे नेड़े है, ये ते हुक्मरान दे नेड़े है। जगत उसदा भी सन्मान करदा है जो हुक्मरानां दे महान हुक्मरान परमात्मा दे नेड़े होवे। राजियां दे महाराजे उस परिपूर्ण परमात्मा दे नेड़े जो चला जाए उसदा भी सन्मान हुंदा है, उहदी भी मान प्रतिष्ठा हुंदी है। तो साहिब कहंदे ने कौन नेड़े है जिहदे कोल चंगियाईयां ने, और कौन दूर है जिहदे कोल बुराइयां ने। दूरी दुख है, नेड़ा सुख है, दूरी नरक है, नेड़ता स्वर्ग है, दूरी अंधकार है, नेड़ता प्रकाश है। कोई मनुख जितना भी परमात्मा तो दूर चला जाएगा उतना ही घुप अंधेरे चले जाएगा, और अंधेरे दे सिवाय भटकना तो होर कुछ भी नहीं, तलियां मलन तो इलावा होर कुछ नहीं। जो मनुख जितना नेड़े नेड़े परमात्मा दे होंदा जाएगा प्रकाश दी दुनिया दे प्रवेश करदा जाएगा। यह इंज कहो कोई जितना अग दे नेड़ा होंदा जाएगा अग उतनी उसनू झलसांदी जाएगी, तपांदी जाएगी। ते जो जितना हिमालय पर्वत दे नेड़े होंदा जाएगा शीतल होंदा जाएगा, ठंडा होंदा जाएगा। जो जितना बगीचे दे नेड़े होंदा जाएगा मुअत्तर होंदा जाएगा, ते जो जितना गंदगी दे ढेर दे नेड़े होंदा जाएगा आखिर उत्थों दी बदबू दे नाल अपने दिल दिमाग नू खराब कर बैठेगा। एक कुंठित वातावरण दे विच ओ फसेगा और दब के चीखेगा, औखा होवेगा। परमात्मा दे नेड़े होना सुंदर बगीचे दे नेड़े होना है, परमात्मा दे नेड़े होना सुख ते आनंद दे नेड़े होना है, और दूर होना अंधकार दे च भटकना है, दूर होना नरक है। तो दरअसल ऐसा भी देखा गया है कि जो परमात्मा तो दूर है किसी हद तक सब तो दूर हो जाता है। ओदी नेड़ता मां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पिता नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पुत्रा नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता भरावां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पड़ोसियां नाल भी नहीं होवेगी, प्रांत वासियां नाल नहीं होवेगी, देश वासियां नाल नहीं होवेगी। क्यों कि जो मूल मरकज तो दूर है वो सब तो दूर हो जाता है। जैसे जो दरख्त दी जड़ां तो दूर है वो दरख्त तो भी दूर है, ते जो मूल केंद्र मरकज परमात्मा तो दूर है सब तो दूर है। इस तरह दे पिता दा कोई भरोसा नहीं कीता जा सकता कि बच्चियां नाल इंसाफ करेगा जो परमात्मा तो दूर है, और इस तरह दे भरा दा की भरोसा जो परमात्मा तो दूर है। यकीन जानो ओ भरा दे भी नेड़े नहीं, ओ पिता पुत्रां दे नेड़े नहीं, ओ पति पत्नी दे नेड़े नहीं है, और ओ पत्नी पति दे नेड़े नहीं है। नास्तिकता दे घुप अंधकार दे डुब के यूरोप ने ते होर अन्य देशां ने तजर्बा करके वेख लिया कि परिवार बिखर गए ने, भरा तो दूर हो गए, बच्चे मां बाप तो दूर हो गए, मां बाप बच्चियां तो दूर हो गए, और इतनी दूरी कि नेड़ता दिखाई नहीं देंदी। कारण की है? दरअसल जो मूल तो दूर हो गया वो डालियां तो भी दूर हो गया, जो जड़ां तो दूर हो गया वो पत्तियां तो भी दूर हो गया, जो परमात्मा तो दूर हो गया वो जगत तो भी दूर हो जाता है, जो निरंकार तो दूर हो जाए वो संसार तो भी दूर हो जाता है। कौन नेड़े है ते किहदी नेड़ता दे उत्ते भरोसा कीता जा सकदा है? दरअसल जो परमात्मा दे नेड़े है। शेख सादी ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत दा कहना है कि खुदा तरस बायद अमानत गुजार, जिहदे कोल धन दी, असमत दी, इज्जत दी, परिवार दी, मुल्क दी या कौम दी अमानत रखनी है, वेख लेना उसदा खुदा तरस होना बड़ा लाजमी है। अगर वो खुदा दे नेड़े नहीं तो अमानत विच खयानत कर देगा। जो असमत उसनू सौंपी है वो सही सलामत नहीं वापस लौटन लगे, जो दौलत उसनू सौंपी है वो खयानत होवेगी। वो कौमी पद्धर ते खयानत करेगा, वो देश पद्धर ते खयानत करेगा। अमानत उसनू सौंपनी है। दरअसल जिहड़ा परमात्मा दे नेड़े है, खुदा तरस बायद अमानत गुजार, जो खुदा तरस ने ते खुदा दे नेड़े ने, परमात्मा दे नेड़े ने, दरअसल वो ईमान दे नेड़े ने, ते जो ईमान दे नेड़े नहीं होते बेईमान है।
जो प्रकाश दे नेड़े नहीं होते अंधकार दे च है। लिहाजा इस तरह दे मनुख दा की भरोसा कीता जा सकता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने करमी आपो आपणी के नेड़े के दूर। जैसे जैसे मनुखता परमात्मा तो दूर होंदी है, सुख तो दूर होंदी है। जगत दा कलेश, जगत दा दुख, संसार दी विपता इस गल दा सबूत है कि परमात्मा तो दूरी है, बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान करमी आपो आपणी के नेड़े के दूर। कीते होए कर्मां दे मुताबिक कोई नेड़े है, कोई दूर है। जिसनों 12 माह विच गुरु अर्जन देव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान करदे ने किरत करम के विछड़े कर किरपा मेलो राम। हे राम, कीते हुए कर्मा करके बिछड़ गए तैथों। कीते हुए कर्मा ने बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। कृपा कर, मेहर कर, रहमत कर, तेरी नेड़ता नसीब होवे। क्यों? क्योंकि तेरी नेड़ता दे ही सुख है, आनंद है, चैन है, रस है। अगर कोई दूर है तो साहिब कहते ने एक किरत कर्म ने, एक कीते हुए कर्म ने। तो कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूर। जो दूर है वो पापी है, जो पापी है वो दूर है। दुष्ट, जालम, चोर, यार, बदमाश, गुंडे सारे इस श्रेणी च आ जाते ने कि सच तो दूर, परमात्मा तो दूर। सील, संजमी, दयालु, कृपालु, विशाल हृदय दे मालक, सम भावना रखण वाले, सम दृष्टि रखण वाले, इस तरह के जितने पुरुष ने ये नेड़े ने। अजोके संसार नूं वेख के कहना पैंदा है कि यह संसार जो कलयुग बन गया, यह संसार जो नरक बन गया, केवल सच दी दूरी दे करके, केवल परमात्मा दी दूरी दे करके। तो साहिब कहंदे ने कीते हुए कर्मा करके कोई नेड़े है, कोई दूर है। कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। जिन्हां ने नाम जपिया, नाम दे च ध्यान जोड़िया, उन्होंने अपनी मुशक्कत सफल कर ली, उन्होंने अपनी घालना घाल ली, सफल कर ली। ते घालना दे चों यही सब तो वड्डी घाल है। अगर कोई संसारिक पद्धर दे ते सफल भी हो गया तो साहिब कहते हैं उसकी घालना सफल नहीं हुई। दरअसल जो आध्यात्मिक पद्धर दे ते सफल हो गया, और कौन सफल होया है? जिन्हें नाम दे च ध्यान जोड़ लिया है, जिन्हें शब्द दे च सुरत जोड़ ली है। जिसने भी जोड़ ली है, महाराज कहते हैं घालना घाल ली उसने, मुशक्कत सफल हो गई, मेहनत दा फल उसनों मिल गया। किसनों? जिसने भी नाम दिहाया है, भाव जिसने भी शब्द दे च सुरत जोड़ी है, जिसने भी नाम दे च ध्यान जोड़े। आखिर धर्म धुन ते ध्यान दी साधना है, शब्द ते सुरत दी साधना है। ते सुरत शब्द दे च जुड़ गई, मानो जगत दियां तमाम घालना उन्हें घाल लईयां। सफलता ओदी झोली दे च आ गई। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। इनू मुशक्कत क्यों आख्या, मेहनत क्यों आख्या? दरअसल जितनी भी घालना जगत दी घाली है, उस तो भी करोड़ा गुणा औखी है ये घालना कि कोई मनुख अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़े। बहुत वड्डी घालना है। वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलाप के उसे धुन दे च कोई ध्यान जोड़े, इस तो वड्डी होर कोई साधना नहीं, इस तो वड्डी होर कोई घालना नहीं। और ये बहुत वड्डी मेहनत है, बहुत वड्डी मेहनत है। सब तो वड्डी मेहनत है तो इसका फल भी सब तो वड्डा है। चूंकि ये मेहनत महान है, इसका फल भी महान है। तो प्रश्न खड़ा होगा, ये जो नाम जपना है, इतनी वड्डी जो है साधना है, मेहनत है, इसका फल की है? इसका फल है परमात्मा। ते परमात्मा फल कैसा है? परम आनंद, परम रस, परम सुख, परम शांति, परम हलेमी ते समूह गुणा दा सार। तो साहिब कहंदे ने जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने सुरत नाम दे च जोड़ी, जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां दी घालना सफल होई, दरअसल मुख उन्हां दे ही पवित्र ने। पानी दे नाल मुख नहीं पवित्र हुंदा, साबण पाउडर इत्यादि मलण दे नाल मुखड़ा पवित्र नहीं होंदा।
ਅੰਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਖੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੀਵੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਮੂਹ ਇਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਜੋ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹਲੇਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਲਾਲ ਲਭਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो साहिब कहन जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दे ते मुख उजले होए, पर उन्हां दा सदका होर भी कईयां दे झूठ दे बंधन टुट गए। और केती छुट्टी नाल होर भी कईयां दी बंद खलासी होई। जिवें किसे ने अपने कपड़ियां नूं सेंट लाया है ते ठीक है उन्होंने ते खुशबू आ रही है, पर उहदे कोल भी जिहड़ा बैठ जाता है उन्होंने भी खुशबू मिल जाती है। जिन्हें नाम जपिया है रस ते उन्होंने मिले है, आनंद ते उन्होंने मिले है, पर उहदे कोल भी जिहड़ा बैठ जाता है उन्होंने भी कोई मस्ती मिल जाती है, उन्होंने भी कोई सुरूर मिल जाता है। ये हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। इस वास्ते नाम रसियां दी संगत विच बैठण दी सानू ताकीद कीती गई है ते नाम रसियां दी संगत विच बैठ के मनुख नूं नाम जपण दी प्रेरणा मिल जाती है। भी इहने सेंट लाया और ये मुअत्तर होया होया है, मैं भी लावां, मैं भी अतर लावां, मेरे विचों भी खुशबू प्रगट होवे। तो इस ढंग दी प्रेरणा भगतां तो मिल जाती है, संतां तो मिल जाती है। साहिब कहंदे ने उन्हां दे ते मुख उजले ने जिन्हां ने नाम जपिया है, पवित्र ने, पावन ने। पर इन्हां पवित्र मुखड़ियां करके होर भी कई पवित्र मुखड़े हो गए, होर भी कईयां दे झूठ दे बंधन टुट गए, दुख दे बंधन टुट गए और उन्हां दी झोली सुख दे नाल भर गई। ये जपजी साहिब दा आखिरी श्लोक मोर जिहदे च धर्म, गुरबाणी, सभ्यता, इंसानियत दा सार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन कर दिता है। सतगुरु रहमत करन कि हर मनुख दी जपजी साहिब नूं सुन के, अर्थ विचार नूं सुन के जपण दी भावना पैदा होवे ते हर मनुख दी ये घालना गुरु नानक देव जी महाराज सफल करन।